Assalamu alaikum. Welcome to first online class of biology, grade 9. Now we have to start chapter 5, that is cell cycle. In previous week, in last class on Wednesday, we started this chapter. Now the chapter 5 is cell cycle. Do you know what is cycle? We discussed last time that the thing that start from a point and it will end to that point. जो भी चीज़ जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पे आके एंड हो जाए, दैट वाज द सेल साइकिल. सेल का अपना एक प्रोसीजर है. सेल it grows, it gets its maximum size, and then it divides into two cells or into four cells. It depends on the cell cycle. Now first that we have to discuss कि what are chromosomes. सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, you know very well, and in nucleus thread like structures are present and these are termed as chromosomes. You have an idea about the chromosomes. Chromosomes are thread-like structures, appear at the time of cell division. It means कि before cell division chromosomes are not visible. बिल्कुल भी नज़र नहीं आते ये सेल डिवीजन से पहले. सिर्फ सेल की डिवीजन के टाइम पर ही you can see these chromosomes. Includes found in specific numbers made up of chromatids material in eukaryotic cell. You have an idea that in prokaryotic cell only single thread-like structure is present, but in eukaryotic cells proper number of chromosomes are present. प्रोकैरियोट्स में सिर्फ सिंगल एक थ्रेड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जबकि यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इवन होते हैं, 2 4 6 8 10 12. अच्छा, the one misconception that chromosomes are colored bodies. This term is misnomer. You know chromosomes are not colored. Basically first time जब ये experiment किया गया कि सेल्स को डाई किया गया तो सबसे ज़्यादा कलर्ड बॉडीज़ जो अपेयर हुई थी वो क्रोमोसोम्स की थी. But later on when research was conducted about it, so it was seen that chromosomes are not colored bodies. So this term is misnomer. They contain hereditary units called genes. You have an idea that all the characters are controlled by genes. But it's found amazingly that these are the colored bodies. And these are not colored bodies. ये misnomer term है, we discussed it in last class. Now you can see these are chromosomes, thread-like structures. They appear at the time of cell division like this, but before cell division, they are not visible. Now you can see that the structure. Now, now you can see that the structure of chromosomes. In last class, Ramin asked a question ke how chromosomes coil. You can see the coiling of chromosomes. This is particular chromosomes that we see in different diagrams. And this thread is uncoiled. जब आप ये thread uncoiled करते हैं
तो ये कुछ इस तरह से अनकॉइलिंग होती है। ये अनकॉइलिंग फर्दर अनकॉइल्ड होती है। ये फाइबर्स की फॉर्म में है, जो प्रॉपर अनकॉइल्ड होते होते ये लास्ट स्टेज आती है जिसमें हमारे पास हिस्टोन, ये जो आपको पर्पल कलर की बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, ये प्रोटीन है। प्रोटीन के स्टोन हैं जो हिस्टोन्स हैं, और इन हिस्टोन्स पे आप ये देख रहे होंगे कि प्रॉपर कॉइलिंग होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की। दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। At your level these are not required, but I showed you because of your confusion. और फिर ये ऐसे ऐसे लास्ट हमारे पास आता है डीएनए। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। नाउ यू कैन गेट इट कि किस तरह से क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बनते हैं। डीएनए की कॉइलिंग हो रही है इन हिस्टोन्स पे। ये कॉइलिंग होते होते फर्दर कॉइलिंग एंड देन फर्दर कॉइलिंग, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। यू कैन सी दिस डायग्राम। Now you must have known what are the structure of chromosomes and how DNA form these structures. Now get it, the same lecture. DNA forms chromosomes. When we talk about the types of chromosomes, there are four main types of chromosomes: metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. Now you can see the four types of the chromosomes: metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. We will discuss one by one these types. These are the four main types of the chromosomes. What is metacentric? Do you have any idea about the metacentric? A metacentric chromosome is a chromosome whose centromere is centrally located. As a result of chromosomal arms, P and Q arms are almost equal in length. A metacentric chromosomes would have the X shape. Now you can see this. This is complete chromosome. One arm is P arm and the next arm is Q arm. The central part where two chromatids are connected together, these are termed as centromere. Centromere is basically made up of proteins and it is the central part. ये वो part है जिससे दो chromatids आपस में connected हैं. ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में हो क्रोमोसोम के, half P arm or half Q arm, you can see this. This is known as metacentric chromosomes. Is that clear? Now the next type is before getting to the next slide, जब हम metacentric की बात करते हैं
तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं जिसका शेप यूजुअली एक्स बनता है, क्योंकि सेंटर में होने की वजह से यू कैन सी कि आपके पास क्रोमोसोम का प्रॉपर शेप एक्स आता है, बिकॉज सेंट्रोमियर्स आर लोकेटेड एट द सेंटर। ये 4 टाइप्स सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेस पे की गई हैं, on the basis of the location of centromere, where centromere is located. Now we have to see the position of centromere. जहाँ पे वो लोकेट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रोमोसोम्स की टाइप चेंज हो जाएंगे। The next is the next type is submetacentric. Submetacentric is a type of chromosomes whose centromere is located near the middle. As a result, the chromosomal arms P and Q arms are slightly unequal in length and may also form an L shape. Near the middle, it means not at the center. एक आर्म लेंदी होगा, दूसरा जो है वो शॉर्टर इन लेंथ होगा. Now you can see this. This one. This is centromere, the position of centromere. This is chromosome. Single chromosome is made up of chromatid. ये हमारे पास क्रोमेटिड है. अब आप सेंट्रोमेयर की पोजीशन देख लीजिए. इट्स नॉट लोकेटेड इन द सेंटर. प्रॉपर ये सेंटर में नहीं है, बल्कि एक आर्म आप देख सकते हैं कि मोर इन लेंथ एंड दिस इज शॉर्टर इन लेंथ. ये जो सेंट्रोमेयर है, यहाँ मेंशन है काइनेटोकोर, and this basically centromere is made up of protein and that protein is named as kinetochore. ये जो इसके आर्म्स हैं, हम इसको लोकेट करते हैं, इसको प्रॉपर नेम करते हैं कि पी आर्म एंड क्यू आर्म, and these are unequal in length. Let's move to the another type, that is acrocentric. A chromosome in which the centromere is located quite near one end of the chromosome. Humans normally have 5 pairs of acrocentric chromosomes. Down syndrome is caused by an extra acrocentric chromosomes, chromosomes 21, also called subtelocentric. Acrocentric is also called subtelocentric. एक्रोसेंट्रिक को बेसिकली टू नेम्स कॉल किए जाते हैं. यू कैन कॉल एज एक्रोसेंट्रिक एंड सबटेलोसेंट्रिक. नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास एक्रोसेंट्रिक वो होता है जिसमें बहुत शॉर्ट एक आर्म हो जाता है, और जो दूसरा हमारे पास आर्म होता है क्यू आर्म, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है. बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं होता हमारे पास सेंट्रोमेयर, बट इट्स नियर टू कॉर्नर, एंड दिस इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक. दिस इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक. The last type is telocentric. Telocentric is a chromosome whose centromere is located at one end. The centromere is located very close to the end of the chromosome that the P arms would not or barely be visible. Now you can see that. This is at the corner. This is first chromatid. This is second chromatid, and at the ends of these chromatids, centromere is located. यूजुअली जो लेंथ वेरी करती है वो पी आर्म की करती है. हम उसको लोकेट करते हैं पी आर्म से. क्यू आर्म हमारे पास जो है वो विजिबल होता है इन ऑल केसेस. वी डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ chromosomes and these types were regarded as
These types basically are on the basis of the location of centromere. You can see I repeat the whole types of the chromosomes. And first type, metacentric. Basically, chromosome is present at the center. Centromere is present at the center. In submetacentric, you can see the one arm is short and the next arm is very long. In acrocentric, you can see the one arm is longer and the P arm is shorter. And in telocentric, centromere is located at the corner of the chromatids. P arm is not visible. सिर्फ एक आर्म विजिबल होता है, कॉर्नर पे होता है सेंट्रोमेयर, और यहाँ पे पी आर्म जो है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता. These were the 4 types. Why we are discussing about the types of chromosomes? Because chromosomes जो है वो necessary हैं. जब हमें सेल साइकिल को स्टडी करना है, it means कि we are talking about the division of the cell. So basically how chromosomes divide, what are chromosomes, how they are present in cells, what are the different types, we have to discuss all these things. If you have any confusion in this lecture, you can send message in chat box. जिसको भी प्रॉब्लम है आवाज़ में या वीडियो में, वो दोबारा से अपने इंटरनेट के कनेक्शन जो है वो चेक कर लें और मीटिंग लीव करके रीज्वाइन कर लें अगेन. कहना स्क्रीन नहीं आ रही है. अच्छा बेटा, यहाँ से कोई इश्यूज़ नहीं है. अगर आपको कोई भी स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप दोबारा से रीज्वाइन कर लें उसको. यहाँ से सब क्लियर है, आप अपना नेट चेक कर लीजिए. Now we have to start next topic, that is sister chromatids. What are sister chromatids? Have you ever heard about it? Do you have any idea about the sister chromatids? Now I show you first. Chromosomes is made up of 2 chromatids. एक ही क्रोमोसोम के जो 2 chromatids हैं, these are termed as sister chromatids. This is centromere, the central point where 2 chromatids are attached. This is a single chromosome. ये क्रोमोसोम है, इसमें 2 chromatids हैं और ये दोनों एक दूसरे के sister chromatids हैं. Now you have an idea about the sister chromatids. A sister chromatid refers to the identical copies, chromatids, formed by the DNA replication of a chromosome
with both copies joined together by a common centromere. In other words, a sister chromatids may also be said to be one half of the duplicated chromosomes. ठीक है. Whenever we talk about the sister chromatids कहते हैं ऐसे क्रोमोसोम्स को जो एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं. आप सिंगल क्रोमोसोम को ले लीजिए, इट इज़ मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स, और ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं हम इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं. There is another term used here, and that is non-sister chromatids. Now you can see this. Non-sister chromatids वो हैं जो दो different chromosomes के chromatids हैं. Now you can see this. There is one chromosome, there is another chromosome. There is one red and there is one green. Homologous chromosomes हैं. We have discussed कि homologous chromosomes जो हैं वो same chromosomes को कहते हैं. Same shape, same size. These are termed as homologous chromosomes. Green chromosome and red chromosome. अब जब आप इनके chromatids देखेंगे, these are termed as non-sister chromatids. ग्रीन क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर हैं. रेड क्रोमोसोम्स में दो क्रोमैटिड्स हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट द सेपरेट वन, ग्रीन एंड रेड, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. Now you can see non-sister chromatids are chromatids of homologous chromosomes. During cell division, each chromosome needs to replicate. This ensures that the each daughter cell gets a complete set of chromosomes which produces sister chromatids. सेल डिवीजन की हम जब भी बात करते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह माइटोसिस एंड मेयोसिस, दीज टू प्रोसेसेस ऑफ द सेल डिवीजन. नाउ यू हैव एन प्रॉपर आइडिया कि हाउ दीज क्रोमोसोम्स डिवाइड एंड हाउ दीज क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर. आपने यहाँ पे देखा होगा कि ग्रीन का कुछ सेगमेंट जो है वो रेड है और रेड क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट जो है वो ग्रीन है. बेसिकली ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर शो हो रही है. अभी हमारा टॉपिक क्रॉसिंग ओवर नहीं है बल्कि सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है. तो आप सिर्फ ये चीज़ समझिए कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं. एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स सिस्टर. होमोलोगस क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रही हूँ जिसमें मेरे पास 4 क्रोमैटिड्स हैं. तो लाइक यू कैन सी ग्रीन एंड रेड. तो जो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. Now the next topic is cell cycle. I told you in last class that what is cell cycle? The ordered sequence of events that occur in a cell in preparation for cell division. Basically cell division की अगर हम बात करें तो सेल को डिवाइड होना है, उसको न्यू सेल्स प्रिपेयर करने हैं, उसको न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करनी है और उसके लिए उसको प्रॉपर सीक्वेंस से पास होना है. कुछ प्रॉपर उसके प्रोसेसेस हैं जिनसे उसको गुजरना है और वो हमारे पास सेल साइकिल कहलाते हैं. सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें बेसिकली अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि सेल इंक्रीज़ करता है अपना साइज़. ठीक है, वी डिस्कस्ड कि सेल प्रोड्यूस हुआ, सेल अपना साइज़ ग्रो करता है, फिर मैक्सिमम साइज़ अटेन करने के बाद वो अपने डीएनए को कॉपी फॉर्म करता है, उसको सिंथेसाइज करता है और फिर उसको प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए. एट द
when it gets maximum size, then it divides into two other cells. और वो हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सब माइटोसिस के थ्रू जो है वो अपने सेल को डिवाइड करते हैं. लेकिन बॉडी में जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं सिर्फ उनमें जो है वो मियोसिस का प्रोसेस होता है. Whenever we talk about the cell cycle, इसको हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. दैट इज इंटरफेज. ये नॉन डिवाइडिंग फेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता बल्कि बहुत अपनी ग्रोथ में अपने जो प्रॉपर ग्रो करता है या कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके लिए उसको रेडी होना है. ये एक तरह से नॉन डिवाइडिंग फेज है. इट इज़ अ पोर्शन of the cell cycle that is not accompanied by observable changes under the microscope. सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रोल प्ले करते हैं वो क्रोमोसोम्स के होते हैं. एंड आई टोल्ड यू वन थिंग कि क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल एट द टाइम ऑफ सेल ग्रोथ. सेल डिवीजन के टाइम पे ही वो नज़र आते हैं. तो इंटरफेस क्योंकि नॉन डिवाइडिंग फेज है, इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही है, इसमें कोई सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होते, तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते. और बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जो माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई नहीं देती हैं. नाउ यू कैन सी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस इज इंटरफेस. हम ये डिवाइड करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस में. जैसे आपके पास जो आपके नोन प्रोसेसेस हैं वो है माइटोसिस. ये वो पीरियड है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होता है. ठीक है, ये पूरी साइकिल शो होती है. सेल डिवाइड हुआ मतलब न्यू सेल फॉर्म हो गए, टू डॉटर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. Let's see this. This is the mitosis stage. You know, mitosis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होता है और टू डॉटर सेल्स बनाता है. अब ये जो दो डॉटर सेल्स बने हैं तो ये ग्रो भी करेंगे. एंड दिस इज इंटरफेस. सेल ग्रोथ हो रही है जिसको हम कैटेगराइज करते हैं G1. G1 स्टैंड्स फॉर गैप 1. सेल ग्रो करता है. देन S. S stands for synthesis phase. This is DNA synthesis. प्रॉपर डीएनए की सिंथेसिस हो रही है. अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि डीएनए प्रॉपर डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. जब डीएनए प्रोटीन्स से मिलके बनता है तो जिस तरह से पजल्स होते हैं और हम उनसे एक शेप रेडी करते हैं, जिस तरह से ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स को जोड़कर हम एक क्लियर पिक्चर फॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक दिस प्रोटीन्स बनते हैं, आपस में ज्वाइन होती हैं और फिर डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज होता है. तो ये कंप्लीट प्रोसेस है. इस पूरे स्टेप में ये काम होता है. एंड दिस इज एस फेज ऑफ इंटरफेस. देन अगेन दिस इज G2, गैप 2, सेल ग्रोथ. और ये वो फेज होता है जिसमें सेल खुद को रेडी करता है फॉर द नेक्स्ट डिवीजन. और फिर अगेन सेल मतलब मैक्सिमम साइज उसका अटेन हुआ एंड नाउ इट इज़ रेडी टू बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेल्स. दिस इज इंटरफेस जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल साइकिल का.
Now I repeat this phase. During the mitotic phase, the cell divides its copied DNA and cytoplasm to make two new cells. M phase involves two distinct division related processes, mitosis and cytokinesis. And mitosis is basically a period of dividing phase. जिस चीज़ में डिवीजन हो रही है, जो प्रॉपर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, वो हमारा माइटोसिस का प्रोसेस है जिसमें सेल्स की डिवीजन होगी. आई रिपीट द होल प्रोसेस इस पूरे लेक्चर में. चैप्टर 5 रिगार्डिंग सेल साइकिल. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज सेल साइकिल. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वो सारे प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो एक सेल में होता है. जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और एक मैक्सिमम साइज अटेन करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एजेड होना शुरू होते हैं और फिर डिक्लाइन की तरफ आते हैं और फिर डेथ हो जाती है. द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इनटू द सेल. सेल डिवाइड होता है टू सेल्स में और वो टू सेल्स डॉटर सेल्स हैं जो ग्रो करते हैं. And the whole process is termed as cell cycle. इस पूरे प्रोसेस में आप सेल डिवीजन का कोई सा भी प्रोसेस देखें, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है क्रोमोसोम्स. क्योंकि सबसे पहले सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं. उनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, उनका प्रॉपर जो उनका डिवीजन होता है, उनके नंबर्स होते हैं, वो सब यहाँ बहुत मैटर करता है. तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स और ये 4 टाइप्स मैटर करती हैं किस चीज़ से? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटोकोर. आई रिपीट, काइनेटोकोर इज़ अ प्रोटीन जो कि सेंट्रोमेयर का बनाते हैं. दिस इज सेंट्रोमेयर. Centromere is basically that part which is used to join two chromatids together. You can see in this diagram, आपके पास एक क्रोमैटिड ये है, दूसरा ये है. इन दोनों को जिस पॉइंट ने जोड़ा हुआ है, दिस इज सेंट्रोमेयर. तो क्रोमोसोम्स को जब हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो ये सेंट्रोमेयर की टाइप बेस पे करते हैं. तो मेटासेंट्रिक जिसमें क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेंटर में हो, सब मेटासेंट्रिक जिसमें सेंटर में ना हो टुवर्ड्स पी आर्म जो कि शॉर्ट आर्म होता है, एक्रोसेंट्रिक जिसमें एक आर्म बहुत शॉर्ट होगा और जो दूसरा आर्म है जो क्यू आर्म है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा. लास्ट टाइप जो टेलोसेंट्रिक है उसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्रोमैटिड. इट मीन्स कि हमारा एक आर्म टोटली इनविजिबल है, हमें कुछ भी उस आर्म में नज़र नहीं आता, सिर्फ एक विजिबल होता है एंड दैट इज क्यू आर्म. After discussing these 4 types, we discussed about the sister chromatids. Sister chromatids क्या थे? I repeat, एक ही क्रोमोसोम जो कि 2 क्रोमैटिड्स से मिलके बना है, वो दोनों क्रोमैटिड्स उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की टर्म यूज़ होती है. एंड बेसिकली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से हैं? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के डिफरेंट क्रोमैटिड्स हैं. यहाँ इसको कलर से विजिबल किया गया है so that you may understand this concept. होमोलोगस क्रोमोसोम एक ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है. ग्रीन कलर के जो 2 क्रोमैटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं टू ईच अदर. लेकिन रेड और ग्रीन अगर हम इनके क्रोमैटिड्स आपस में देखें
तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं टू ईच अदर. एंड देन वी डिस्कस्ड सेल साइकिल. एक ऐसा ऑर्डर्ड सीक्वेंस जिसमें सेल अपनी डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करें. तो बेसिकली ये डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होता है. वी विल डिस्कस दीज स्टेजेस इन डिटेल. हमने आगे इनको डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने इसीलिए इसको सिर्फ नाम लेके आपको बता दिया कि व्हाट आर द स्टेजेस. G1 दैट इज़ गैप 1, S स्टेज दैट इज़ सिंथेसिस स्टेज, G2 दैट इज़ गैप 2, और M स्टेज हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ माइटोसिस. ये 4 स्टेजेस हैं जिनमें हमने अपनी पूरी सेल साइकिल को डिवाइड कर दिया. हर स्टेज में जो जो प्रोसेसेस हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन वी डिस्कस्ड इंटरफेस. और इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेस है जिसमें आपको कोई जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं वो दिखाई नहीं देती. बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ विजिबल नहीं होता है, आप उसको देख ही नहीं सकते. लेकिन जब हमारा सेल डिवाइड होना शुरू होता है, कोई भी लिविंग सेल, तो डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक अपीयरेंस दे रहे होते हैं. और वो थ्रेड लाइक अपीयरेंस जो है वो क्रोमोसोम्स के आते हैं. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल जो है वो डिवीजन की तरफ जाता है. एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस. ये वी डिस्कस दिस G1 phase, then S phase, DNA replication phase, then G2 phase, and then mitosis, nuclear division, cytokinesis. You can see this. We will discuss mitosis in detail. आपको पता होगा कि mitosis क्या होता है, cells कैसे divide होते हैं, और किस तरह से एक सेल दो में डिवाइड होता है. जब वो दो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनमें क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी के इस रिमेनिंग पोर्शन में है, G1, S एंड G2 में. इफ़ यू हैव एनी confusion, I know today is first class and you may have so many problems and questions, so you can drop your questions in chat box. ओके, आई विल ट्राई टू मैनेज दिस कि मैं अपना माइक क्लोज ना करूं. इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताइए. कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आगे चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे. माइटोसिस का कंप्लीट प्रोसेस है, G1, S फेज, G2, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप सिर्फ आउटलाइंस देख रहे हैं, इसकी हेडिंग्स देख रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर एक आइडिया हो कि बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस.
जिन स्टूडेंट्स के पास स्क्रीन शो नहीं हो रही वो आप अपना नेट चेक कर लीजिए। यहाँ से बेटा सब क्लियर है, आपके नेट में शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है। Whatever we have discussed today, just repeat all these things. आप अभी इस टॉपिक को यहीं तक रखिए and inshallah in next class we will continue. But I'll ask different questions regarding this lecture. तो before starting next lecture, आप कोशिश ये करें कि इसको अच्छे से समझ लीजिए. दिस चैप्टर इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. अगर आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं आएगा तो नेक्स्ट आपको समझ नहीं आएगा. अस्सलाम वालेकुम.